नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, और पिछले कक्षा में हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने को जा रहे हैं. वी वांट टू टेक द थर्ड चैप्टर. देन that chapter is not that much important, so we are not taking that chapter. I am going to discuss the grammar part from that chapter. Okay children, you got what I told? That third chapter is not that much important, so we are not taking that chapter, but the grammar and exercise part we are going to discuss on today. Okay, you understood what I told? Okay children, then all of take your book, page number 27. Page number 27. That exercise number 1. भाववाचक संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए. Give adjective for this abstract noun. In last year and we studied this type of more questions. Today we are going to make विशेषण. और भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बनाओ. भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा means abstract noun. Or we want to give adjectives for this abstract noun. Listen. First one, विस्मृति. Abstract noun, विस्मृति. Then विशेषण. What is the विशेषण for that? विस्मृत. विस्मृति, विस्मृत. Then second one, आनंद. Abstract noun, आनंद. And adjective, आनंदित. आनंद, आनंदित. विस्मृति, विस्मृत. आनंद, आनंदित. सघनता. Third one, सघनता. सघनता, सघन. सघनता, सघन. The next one, विस्तार. That already have that here. विस्तार, विस्तार. विस्तृत. विस्तार, विस्तृत. शांति. The next one, शांति. शांति, विशेषण. शांत. शांति, शांत. शांति, शांत. Then प्रदूषण, प्रदूषित. प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषित. पराक्रम. Next one, पराक्रम. भाववाचक संज्ञा पराक्रम and विशेषण पराक्रमी. पराक्रम, पराक्रमी. Then तिरस्कार, तिरस्कृत. For तिरस्कार, विशेषण तिरस्कृत. तिरस्कार, तिरस्कृत. Then कृतज्ञता, कृतज्ञता. The next one, कृतज्ञता, कृतज्ञ. कृतज्ञता, कृतज्ञ. Then विद्वता. विद्वता, विद्वता, विद्वान. विद्वता, विद्वान. These are the adjective for given abstract noun. विस्मृति, विस्मृत. आनंद, आनंदित. सघनता, सघन. विस्तार, विस्तृत. शांति, शांत. प्रदूषण, प्रदूषित. पराक्रम, पराक्रमी. तिरस्कार, तिरस्कृत. कृतज्ञता, कृतज्ञ. विद्वता, विद्वान. Okay children, you got these words? This you want to write in your textbook. Okay.
next one, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखे. Write the word and suffix separately. Word, which is the मूल शब्द, word and प्रत्यय, that means suffix. प्रत्यय अलग करके लिखे. Write separately that word and suffix. One example is given here. Sansarik. Sansarik means sansar plus ik. Sansar, sansarik, sansar plus ik. Sansar plus ik is equal to sansar plus ik, sansarik. Sansar plus ik, sansarik. Or the next one, abharadik. Abharadik means abharad plus ik. Abharad, abharad plus ik, abharadik. Abharad plus ik, abharadik. The next one, shaishik. Shaishik, shiksha plus ik. Shiksha plus ik, shaishik. शिक्षा प्लस एक शैक्षिक. शिक्षा प्लस एक शैक्षिक. ऐतिहासिक, ऐतिहासिक. इतिहास प्लस एक, which is the मूल शब्द इतिहास. इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक. इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक. Here listen, sansar plus ik, सांसारिक. अपराध प्लस एक, आपराधिक. और शिक्षा प्लस एक, शैक्षिक. और इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक. Here listen here, here which word is मूल शब्द, which one is मूल शब्द and which one is प्रत्यय. Here this is the मूल शब्द. Okay, मूल शब्द is here. Then we are adding the pratyay. Pratyay after the word we are adding but upasarg before the first we are adding the upasarg, then after the word we are adding the pratyay. Here we are discussing the pratyay suffix. Sansar, this is the मूल शब्द and this is the pratyay. Sansar plus ik, sansarik. The next, abharadik. Here which word is मूल शब्द? अपराध. अपराध plus ik. Ik is the प्रत्यय शब्द. और शैक्षिक. Here शिक्षा is the मूल शब्द and ik is the प्रत्यय. और ऐतिहासिक. इतिहास is the मूल शब्द and ik is the प्रत्यय. You understood this? Okay, this also you want to write in your textbook. Sansar plus ik, अपराध plus ik, शिक्षा plus ik, और इतिहास plus ik. The next, some more question is the next one. पुष्पित, पुष्प plus ith. Then pradishthit, pradisht plus id. Pradishthit, pradisht plus id, pradishthit. The next one, pradisht plus id, pradishthit. Prabhavit, prabhav plus id. Prabhav plus id, prabhavit. Prabhav plus id, prabhavit. Here we are adding the it pratyay. Then first we discuss with ik pratyay. Then next one, abhaman is abhamanit. Abhaman plus id, abhamanit. Abhaman plus id, abhamanit. Okay, abhaman plus id, abhamanit. Pradisht plus id, pradishthit. Prabhav plus id, prabhavit. Abhaman plus id, abhamanit. You got it this also? Okay.
Okay children, then we can take the next one. Page number 28. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे. Write synonyms. Or first we can discuss that synonyms are makan, ghar, bhavan. Nauka. Nauka means nauka. Synonyms naam or taruni. Nauka, naam, taruni. Or shikshak. Shikshak means teacher. Guru, adhyabak. Shikshak, guru, adhyabak. The next one, mithya. Mithya means jhoot. Jhoot. Jhoot or asatya. Mithya means jhoot, asatya. Then gunah, aparadh or paap. Parakram. Parakram means sahas. Sahas. Sahas or वीरथा. साहस, वीरथा. धन. धन means wealth. धन. दौलत और रुपया. रुपया that means money. और कोशिश. कोशिश. कोशिश means effort. प्रयास. कोशिश, effort. कोशिश means effort. प्रयास and prayatna. These are the synonyms for given words. First one is makan. Makan means ghar or bhavan. Then nauka, nav, taruni. Then shikshak. Shikshak, guru, adhyabak. Then mithya, jhoot, asatya. Parakram, sahas, veeratha. Then daulat, rupaya. Then koshish, prayas, prayatna. These are the synonyms. This also you want to study and write in your textbook. Okay children. Or the next one. What is the next one? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे. Write synonyms. Write synonyms. Then first one, udas, present. Udas means sad. What is the opposite of udas? Present. Then second one is layak. Nalayak. Layak, nalayak. The next one, nyay. Nyay. What is the opposite of nyay? Last year you studied. Yes. Anyay. Nyay. Anyay. Or jhoot. That also you already studied. Jhoot. What is the opposite of jhoot? Yes. Very good. Jhoot. Such. Jhoot. Such. Puraskar. Puraskar. Puraskar means gift or award. Puraskar. What is the opposite? Yes, very good. Dand. What is the meaning? Dand. Punishment. Puraskar. Dand. Or punya. Punya opposite? Paap. Punya. Paap. Punya. Paap. Or kam. Kam. Opposite zyada. Kam less, zyada means more. Kam, zyada. Sajjan. Sajjan means good people. Sajjan. Durjan. What is the opposite of sajjan? Durjan. Listen. लायक, नालायक, न्याय, अन्याय, झूठ, सच, पुरस्कार, दंड, पुण्य, पाप, कम, ज्यादा, सज्जन, दुर्जन. These are the opposite words. You got it children?
लायक, नालायक, न्याय, अन्याय, झूठ, सच, पुरस्कार, दंड, पुण्य, पाप, कम, ज्यादा, सज्जन, दुर्जन. ओके. The next one, that is homework, exercise number 5. What do you want to do? You know that you want to write sha letter words and sa letter words. This is homework for you. Sha letter and sa letter words. You want to write these letters. That means sha letter words you want to write here, and sha letter words here, and sa letter words here. Okay, from this chapter you will get that words that you write. Okay, or the next one, शुद्ध शब्द पर घोड़ा लगाए, and circle the right word. That also very easy. That also you want to do easy. That means circle the right word. Which word is right? That means spelling and all correct. That word you want to, for that word you want to give circle. Okay. The next one is kriya visheshan. Next one, kriya visheshan. Kriya visheshan. That means visheshan, that we already studied. What is visheshan? विशेषण मीन्स संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है विशेषण. और हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिया विशेषण. दैट मीन्स क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द. क्रिया मीन्स वर्ब. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया विशेषण. व्हाट इज क्रिया विशेषण? क्रिया की, listen here, I will write one example. वो जोर से बोला. वो जोर से बोला. जोर means loudly. जोर से बोला. बोला means he told. How he told. Which one is kriya? Yes, very good. This is kriya, isn't it? It's verb, kriya. Or here, which word is describing that kriya? That means kriya की विशेषता बताते हैं. Yes, जोर से. How he told? जोर से. जोर से means loudly. जोर से बोला. Here इस क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द है जोर से. So this word is kriya visheshan. Okay children, this is kriya visheshan. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया विशेषण. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया विशेषण. और कितने प्रकार की क्रिया विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के. 4 types of क्रिया विशेषण. First one, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. रीतिवाचक क्रिया विशेषण. Second one, स्थानवाचक. Second one, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. स्थानवाचक क्रिया विशेषण. Then third one, कालवाचक विशेषण. कालवाचक क्रिया विशेषण. कालवाचक. एंड लास्ट वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. परिमाण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण। और फर्स्ट वन रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मीन्स कार्य के रीति का बोध, कार्य के रीति का बोध कराते हैं, कार्य के रीति का बोध कराते हैं। अब वन एग्जाम्पल यू सी, लिसन हियर, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। वह ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और उस कार्य दैट मीन्स क्रिया की रीति कैसे है, और वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है। हाउ ही इज लिसनिंग, यस वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है। हियर क्रिया शब्द कौन सा है, सुन रहा है। और कैसे सुन रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है, केयरफुली। और वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है। द नेक्स्ट वन सीधा धीरे धीरे वहां से चला, सीधा धीरे धीरे वहां से चला। विच वर्ड इज क्रिया, यस चला। और कैसे चला, धीरे धीरे स्लोली। और इस क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, वही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देन सेकंड वन स्थानवाचक। स्थानवाचक मीन्स स्थानवाचक। सेकंड वन इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दैट मीन्स हियर व्हाट विल क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के स्थान का, प्लेस, क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, क्रिया शब्द खेल रहे हैं। और कहाँ, प्लेस, वर, यस ऊपर, हियर दिस इज द स्थानवाचक क्रिया। इसकी यस यहाँ ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यू गॉट इट, व्हाट इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के स्थान का, यहाँ क्रिया कौन सा है, घेर रहा है। और कहाँ, स्थान, वर ऊपर, ऊपर घेर रहे हैं। गॉट इट चिल्ड्रन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वन मोर एग्जाम्पल, पिताजी अंदर बैठे हैं, पिताजी अंदर बैठे हैं। क्रिया कौन सा है, बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, इनसाइड। सो दिस इज द स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंडरस्टूड। देन थर्ड वन, कालवाचक। काल मीन्स समय का बोध कराते हैं, कालवाचक। थर्ड वन, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का बोध, क्रिया के काल का बोध, क्रिया के काल का बोध कराते हैं, क्रिया के
काल का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, माधाजी मादाजी अभी आ गई। अभी मीन्स नाउ। मादाजी कब आ गई? अभी आ गई है। और दादाजी अभी आ गई है। क्रिया विशेषण, क्रिया आ गई और अभी, दैट इज कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मीन्स समय का बोध कराते हैं। समय, काल का बोध कराते हैं। Then last one is परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण means quantity, quantity. परिमाणवाचक means quantity. That means here mentioning the quantity. और यहाँ one example you see, थोड़ा पानी लाओ। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी लाओ। Which word is kriya? Yes, kriya is लाओ, to bring। थोड़ा पानी लाओ। So this is the परिमाणवाचक विशेषण। You understood? क्रिया विशेषण means क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है क्रिया विशेषण। और 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। रिधिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रिधिवाचक कार्य की रिधि का बोध कराते हैं और स्थानवाचक कार्य के स्थान का बोध कराते हैं और कालवाचक कार्य के समय का या काल का बोध कराते हैं और परिमाणवाचक कार्य के परिमाण का बोध कराते हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, देन सी द क्वेश्चंस। अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट विथ देयर नेम्स। ओके, फर्स्ट वन, कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते हैं। क्रिया विशेषण, कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण? कभी कभी। और कौन सा भेद है? हाँ, कभी कभी, दैट समय का बोध कराते हैं। सो कालवाचक विशेषण। देन नेक्स्ट वन, मेरा मन दिन पर घूरता रहा। विच वर्ड इज क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। विच वर्ड इज? यस, वेरी गुड, दिन भर। दिन भर। और ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? कालवाचक है या स्थानवाचक है और रिधिवाचक है और परिमाणवाचक है। दिन भर या समय, समय का बोध कराते हैं। सो वो भी कालवाचक विशेषण है। कालवाचक विशेषण कौन सा है? कालवाचक विशेषण। देन थर्ड क्वेश्चन, जानबूझकर मैंने उनके साथ अन्याय किया। जानबूझकर, जानबूझकर इज द क्रिया विशेषण। जानबूझकर। और यहाँ कौन सा विशेषण, कौन सा भेद है? यस, वेरी गुड, रिधिवाचक। रिधिवाचक क्रिया विशेषण। कार्य की रिधि कैसे है इसके बारे में बताते हैं। और वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। Then here mentioning the place, समुद्र से बाहर। Which word is क्रिया विशेषण? हाँ, समुद्र से बाहर, से बाहर। और कौन सा है? इसका स्थान का बोध कराते हैं। Isn't it? So स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द लास्ट वन, मास्टर जी थोड़ा ठहरे। थोड़ा, with that words we can identify
Which word? Which one is that? Thoda is the क्रिया विशेषण और कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. Now you understood what is क्रिया विशेषण और 4 प्रकार की क्रिया विशेषण. Okay children, these are the exercise part from this chapter. Then you want to do your homeworks and you want to complete your textbook also. Then I am going to wind up this section. Thank you. Have a nice day.